A very good morning to all. In the previous lecture, we did first order kinetics and half life time. The theoretical concept we understood, and today we are going to start sums based on the first order kinetics. You here see that the main formula I wrote here, the 6 formulas here. First main formula is this: what is the first order reaction? The power of a it is 1, then therefore the reaction is called a first order reaction. If it is a 0 order reaction, then the power of A is 0, and therefore we call that reaction as 0 order kinetics or a 0 order reaction. In the previous lecture, we derived this much formulas, and we started from this formula. The rate is equal to the K and A to the power 1. That means the rate is directly proportional to the concentration of a reactant A. Whenever the reaction starts, suppose a reaction is given that A gives products. Always you have to given this kind of reaction if it is a 0 order reaction or if it is a first order reaction. Then you write the rate law. This is the first method. Rate is equal to the K and A ki power 1. If it is a 0, then A raised to 0 means A raised to 0 is equal to 1, therefore rate is directly proportional to the rate constant. But here in the first order kinetics, rate is dependent on the concentration. So as the reaction starts, the concentration of a product decreases because it converts into the products. As the time pass, the concentration of A decreases and the concentration of a product A reactant decreases and product increases. So we conclude that in the previous lecture that rate also decreases as decrease in the concentration of A. And then we draw a graph. Here I explain you some graphs. A graph rate, suppose here I write rate and here I write concentration of A. Then if concentration increases, then rate increases. If rate decreases, then concentration A decreases. But the general graph is this type, and this is a tan theta. Okay, tan theta, and tan theta is equal to K. Slope is tan theta. Now we move on to the second graph. This is our first graph and this is our second graph. If we draw a graph rate versus time, then it is a exponential decay of the concentration. रेट का जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. ग्रेजुअली इट इज डिक्रीजेज because concentration is not jumped by 0 to 50% and then blah blah blah. It is gradually decreases, therefore rate also gradually decreases, and here we get, if we move this further, then we get a slope. Okay, rate versus time, it is exponential graph. Okay, now we move on to the other graphs. यहाँ पे मैं बैठाता रहूँगा, आप लोग ड्रॉ करते आइए. ये दो ग्राफ तो हम लोगों ने पहले भी ड्रॉ किए थे. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड ग्राफ, दैट इज log 10 base concentration of A versus time. तो ये कहाँ से आया?
log a वर्सेस टाइम, log a वर्सेस टाइम, यहाँ पे भी ले लो, यहाँ से आएगा ये log a वर्सेस टाइम माइनस के अपॉन 2.303 is our slope. It is negative, therefore the graph becomes negative slope, and this is our value of log 10 base a0. This is our third graph. Very important graphs are there. Many times it would be asked in the examination of any kind, unit test, either it is a first examination, either it is a board or MCQ in advanced on in the normal competitive exams. The graph based question are may be asked, so you have to prepare on this fourth graph. Fourth graph I draw log e base a, log e base a versus time, log e base एंड वर्सेस टाइम. तो log e बेस वर्सेस टाइम, तो एक ये रहा फॉर्मूला. तो क्या आना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव स्लोप भी मिलेगा भाई, क्योंकि इसके जैसा ही है. यहाँ पे log 10 था, यहाँ पे log 10 था, यहाँ पे log e है, लेकिन भाई साहब ग्राफ तो माइनस -80 में ही होता है. तो log e बाई a0, तो एक्सपोनेंशियल डीके, एंड दिस इज अवर थीटा, tan थीटा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के, और हियर माइनस के बाय 2.303 इज इक्वल टू tan थीटा. नंबर 5, ग्राफ नंबर 5. ग्राफ नंबर 5, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम. ये कहाँ से आया, तो इसके ऊपर से, ये भी एक्सपोनेंशियल में ही जाएगा. चलिए ड्रॉ कीजिए, ये भी जाएगा एक्सपोनेंशियली. यहाँ पे हो गया a, दिस इज अवर a0 एंड दिस इज अवर टाइम. एक्सपोनेंशियली डी क्या होगा ना, देखो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे रहा a. इजी है, ग्राफ ड्रॉ कर दिया. चलिए आगे बढ़े 6th नंबर ग्राफ के ऊपर. सिक्स्थ नंबर ग्राफ, दैट इज t1/2. t1/2 का भी हमने फॉर्मूला देखा था, वर्सेस a0. तो क्या होगा, सोचो, t1/2 क्या कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है, तो ये ग्राफ मिलेगा, कांस्टेंट मिल जाएगा यहाँ से. ओके, दिस इज अवर 6th ग्राफ. एंड 7th ग्राफ, लास्ट ग्राफ इज प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन. अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है. तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा मिलेगा ग्राफ बाय टाइम, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय टाइम. ओके, फिर यहाँ से ये जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. दिस आर द 7 ग्राफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आर देयर. नाउ मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स ऑफ first order kinetics, and then we move on to the sums. Write down the examples, heading examples of first order kinetics. First example is all the reactions of nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब डीके वाले जो रिएक्शन है उसको बोला जाता है वहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके. ये जितने भी रिएक्शन होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के होंगे. सेकंड, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. थर्ड एग्जाम्पल इज इन्वर्जन ऑफ केन सुगर. केन सुगर मीन्स सुक्रोज, केन सुगर इन
acidic medium, in acidic medium, sucrose C12 C11 H22 C12 H22 O11. In the presence of acidic medium, it gives glucose plus fructose. C6H12O6. ओके, तो ये हुआ इन्वर्जन। अब इन्वर्जन को आप लोग हेलो अल्किन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, esterification reaction is also a first order reaction. Fifth reaction, dissociation of N2O5, dissociation of N2O5। ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखना है। 2 moles of N2O5, 2 moles of NO2 plus O2। ये सॉरी यहाँ पे आएगा 4 moles of NO2 plus O2। And the last example is dissociation of H2O2। Two moles of H2O2 gives 2H2O plus O2। Done? So these are the examples which are already given in the textbook also। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को जा रहा हूँ सम्स के ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर भी इम्पोर्टेंट और इसके सम्स भी इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1, 4 sums I calculate here, you also calculate that। चलिए, a first order reaction, एक रिएक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द concentration of reactant decreases from 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर की बात की गई है, बिकॉज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 250 मोल पर डेसीमीटर क्यूब in 2 into 10⁴ seconds। फाइंड रेट कांस्टेंट, मतलब कि ये फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है आप लोगों को, कौन सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था सम्स के लिए, T इज इक्वल टू 2.303। हर एक जगह यही फॉर्मूला यूज़ करना है कि log 10 बेस A0 बाई A। अब A0 इनिशियल दिया हुआ है 800, A दिया हुआ है 50, तो सीधा K फाइंड करते हैं। K इज इक्वल टू 2.303, T है 2 इंटू 10⁴ सेकेंड इंटू log 10 बेस A0, तो 800 डिवाइडेड बाय 50। बस अब कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री हुआ ओवर 10⁴। अब ये आएगा 16, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ log 10 बेस 2⁴, तो ये 4 यहाँ पे आगे आ जाएगा। 2.303 इंटू 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁴। करो फाइनल आंसर जो भी मिले वो। आंसर विल बी 13.8 इंटू 10⁻⁵ second inverse। Second inverse is the unit of first order reaction for rate constant। बहुत ईजी था। चलिए स्क्रीनशॉट कुछ भी करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए बस, T का। हर एक क्वेश्चन वहाँ से होगा, हर एक क्वेश्चन। चलिए सेकंड आप लोगों को दिया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
a first order reaction is 20 percentage completes in 5 minutes. Find the time in which 60 परसेंटेज कंप्लीट. 20 परसेंटेज के लिए दिया हुआ है, 60 परसेंटेज के लिए कैलकुलेट करना है. तो सपोज क्या करना पड़ेगा, लेट A0 इज 100. नाउ चलो 20 परसेंटेज के लिए हम लोग सबसे पहले करें. तो A0 इज 100. तो A क्या होता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन. तो कितना बचा होगा, 80. चलिए फॉर्मूला लगाइए, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log 10 बेस A0 बाई A. तो 100 डिवाइडेड बाई 80. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देन फॉर 60 परसेंटेज T इज इक्वल टू 2.303. अच्छा यहाँ पे T इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाई K log 10 बेस 100. 60 परसेंटेज कम्प्लीट हुआ, बाकी कितना बचा, 40. इक्वेशन नंबर 2. नाउ क्या करो, 2 डिवाइडेड बाय 1. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, T बाय 5 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 डिवाइडेड बाय दिस. तो क्या बचेगा यहाँ पे, log 10 बेस 100 माइनस 80, log 10 100 और लैग यहाँ पे, अच्छा ऐसे कर दो, 0 0 यहाँ पे कट कर दो. तो भी क्या होगा, log 10 बेस 10 1. यहाँ पे भी log 10 बेस 10 1. तो वो सीधा कैंसिल हो जाएगा. तो मतलब आप लोगों को क्या मिलेगा, चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, log 10 बेस 10 बाय 4 डिवाइडेड बाय log 10 बेस, ये क्या मिलेगा, 10 बाय 8. तो ये log 10 बेस 10 तो कट हो जाएगा यहाँ से. तो log 8 डिवाइडेड बाय log 10 बेस 8 डिवाइडेड बाय log 10 बेस 4. दिस विल रिमेनिंग. बस बाकी आप लोग log कैलकुलेट करो, फिर फाइनल आंसर जो भी मिले, फाइनल आंसर विल बी 20 मिनट. 20 मिनट आप लोगों को आंसर मिलेगा. चलिए कैलकुलेट कीजिए, पोज करके वीडियो कैलकुलेट कीजिए. चलिए आगे बढ़े हम लोग. नेक्स्ट मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. एक रिएक्शन दिया हुआ है, A गिव्स प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. द कंसंट्रेशन ऑफ A changes from 0.1 to 0.025 molar in 40 minutes. Find the rate of reaction when concentration of A is 0.01 मोलार. अब देखो यहाँ पे रेट फाइंड करने को बोला है, तो रेट लिखो. रेट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट इज इक्वल टू K A की पावर 1. तो K नहीं है हमारे पास, तो क्या करो, कैलकुलेट करो. T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log 10 बेस A0 बाई A. यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.1 to 0.025. K इज इक्वल टू 2.303. टाइम इज 40 मिनट.
log 10 बेस A0 is 0.1 and 0.025, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो log 4 2.303 40 log 10 बेस 4, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, तो 2 आगे आ गया 2.303 2 इंटू log 2 0.3010 डिवाइडेड बाय 40, जो भी आए वो आंसर कितना मिलेगा 0.0301, और इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 0.0301 इंटू 0.01, देयरफॉर आंसर विल बी 3.01 इंटू 10⁻⁻⁴। इतना इजी था, ऐसा इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो एक क्लास हम आप लोग कर लेते हैं, फिर लेक्चर ख़त्म। अब ये सम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हाफ लाइफ टाइम हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दिया हुआ है आप लोगों को, के इज़ 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। अब फाइंड करना है फर्स्ट T1/2 फाइंड करो। T1/2 का मतलब T50% फाइंड करना है हमें, और T1/2 का मतलब क्या, T50% कंप्लीट हो चुका होगा, देयरफॉर T, तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है 2.303 इंटू डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ 10 A0/A। तो A0 क्या है, A0 इज 100, देयरफॉर T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू है हमारे पास 0.93 इंटू 10⁻³ लॉग 10 बेस 100 डिवाइडेड बाय 50, 2.303 log 2 की वैल्यू 0.3010, 6.93 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट करो जो भी आए आंसर। फिर आप लोगों को कहा गया है सेकंड T1/3 कैलकुलेट करो। 1/3 का मतलब क्या होगा, T1/3 का मतलब मतलब 0.33% कंप्लीट है, तो रिमेनिंग इज 0.66, बस तो वही लगाओ फॉर्मूला T1/3 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू 6.93 इंटू 10⁻³ लॉग 10 बेस A0 इज 100, तो मैं ऐसा लिखूँ A0 डिवाइडेड बाई 2/3 A0, 1/3 कंप्लीट का मतलब 2/3 इज रिमेनिंग, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3/2 log 10 बेस 3/2। बस अभी आप लोग कैलकुलेशन कर दिया हो, हिंट मैं दे रहा हूँ, कैलकुलेट आपको करना है। फिर पूछा गया है T2/3, T2/3 मतलब 1/3 इज रिमेनिंग, 1/3 रिमेनिंग, देयरफॉर T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू है आपके पास log 10 बेस A0 एंड A0/3, तो A0 कट 2.303 के, तो log 10 बेस 3, बस फिर जो वैल्यू मिले वो आंसर हो जाएगा आप लोगों को। और लास्ट कैलकुलेट किया T 3/4 75%, तो बाकी कितना बचा 1/4 रिमेनिंग, तो क्या हो जाएगा A0 डिवाइडेड बाई A0/4, A0 कट 4 ऊपर आएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा log 10 बेस 4, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। आंसर्स जो है वो आप लोग कैलकुलेट करते रहिए। डन, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट टाइम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू एंड वेरी मच।